Hello everyone, welcome to Siddhi Academics. I'm Amrita. I firmly believe that you should keep trying until you get it right. Let's start our trial for today. We have started with introduction into percent. Now let's delve a little bit further into it. Let's understand further details so that we can solve Olympiad level questions also in a Ziffy. So if you want to watch all the videos that I'm making, keep a track of them, then please like, share and subscribe to my channel Siddhi Academics. Now let's understand how to convert a fraction or a ratio into a percentage. तो percentage का formula क्या है? Value of an entity, जो कोई भी entity divided by total value multiplied with 100. अब इसको formula को कैसे use करना है? Why is the formula like this? इस example को लेके समझते हैं. Example है, question is 20 students out of 120 students from grade 7 choose not to go for a field trip. Okay, स्कूल एक ऑर्गेनाइज कर रहा था फील्ड ट्रिप. ग्रेड 7 में मान लो सारे सेक्शंस मिलके 120 स्टूडेंट्स हैं. आउट ऑफ देम 20 स्टूडेंट्स ड्यू टू वन रीजन और द अदर decided not to go for the field trip. They skipped the field trip. What is the percentage of students from grade 7 that decided not to go? Okay, तो हमें ये ढूंढना है. Let's see how. अच्छा, पहले मैं इसको रेशियो के फॉर्म में लिखती हूँ. रेशियो के फॉर्म में समझते हैं. So if you see number of students that decided not to go is to total number of students. तो कैसे लिखेंगे? 20 students decided not to go and total strength of the grade 7 is 120. So ये हो जाता है रेशियो 20:120. हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ दी स्टूडेंट्स who decided not to go. परसेंटेज मतलब हमने पहले ही सीखा था in our previous video and the introduction video that it is per hundredth. What is the value for 100? If I divide something into 100 equal parts, how much will be that portion from that 100 equal parts? That is percentage. तो मतलब मेरा यहाँ पर मान लो अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 120 ना होकर 100 हो तो कितने बच्चे नहीं गए हैं? लेट दैट बी एक्स. ओके, 20 स्टूडेंट्स नहीं गए हैं 120 में. मुझे निकालना है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स दैट डिड नॉट गो फॉर द फील्ड ट्रिप. इसका मतलब मैं जानना चाहती हूँ, मान लो अगर 100 बच्चे हैं ग्रेड 7 में, उनमें से कितने बच्चे नहीं गए. सो मैं एक रेशियो से अब आ गई हूं, एक प्रोपोर्शन फॉर्म कर लिया यहाँ पे, राइट. सो इस प्रोपोर्शन को सॉल्व करने के लिए हमें पता है that product of extremes is equal to product of means. तो हम करते हैं वही चीज. 20 into 100 is equal to 120x. Therefore x is equal to 20 divided by 120 into 100. अब देखो हम इसी फॉर्म में आ गए, परसेंटेज फॉर्मूला के उसी फॉर्म में आ गए. वैल्यू ऑफ द एंटिटी इज those 20 students who have decided not to go divided by its total value. Total value is the total strength of the class grade 7 120 multiplied by 100. तो हमें ये एक्चुअली अब देगा क्या? परसेंटेज देगा. We just need to do the simple cancellation and we can find the percentage. So it is actually nothing but 50/3%. अब ये परसेंट मुझे हमने पहले भी ये चीज देखी थी कि परसेंट में हमें ये लगाना पड़ता है, ये सिंबल परसेंट का. सो इट इज एक्चुअली 50/3. तो रेशियो को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ये हम यहां से देख रहे हैं. अच्छा, लेट्स सी. फ्रैक्शन को अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो कैसे करूंगी? ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखती हूँ. 20 स्टूडेंट्स बाय 120, right? 20 students out of 120 decided not to go. Now I want to know out if the total number of students would be 100 in grade 7, तो उसमें से कितने बच्चे नहीं गए, right? तो इसको x% ले लेती हूँ. Now what do I do? मुझे ये निकालना है x. I cross multiply. क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? 120x. ओके, ये इस करके 120x लिखती हूँ because 120 gets multiplied with x after cross multiplication. So it is 120x equal to 20 into 100. Therefore x is equal to 20/120
इंटू 100। अगेन इसी फॉर्म में आ गया परसेंटेज फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ द एंटिटी विच इज 20 divided by its total value which is total strength of the class, that is 120 multiplied by 100। अब हम उससे भी कैंसिल आउट करेंगे तो 50/3% ही आएगा। नाउ वी कैन चूज टू शो इट इन डेसिमल फॉर्म। सो अगर डेसिमल फॉर्म में दिखो तो क्या होगा, 3 1s are 3, सब्ट्रैक्ट करूंगी 20, सो 3 6 are 18, सो बच गया 2 0, अगेन मैं ले आती हूँ यहाँ पर, सो दैट विल बी 3 6 are 18। सो ये कंटिन्यू होगा इस तरह से। सो इट इज समथिंग लाइक approximately equal to 16.7% of the students from grade 7 who decided not to go for field trip for one reason or another। ये समझ में आ गया। एक को मैंने रेशियो के फॉर्म में दिखा दिया, ये वाला मैंने सॉल्व किया है फ्रैक्शन के फॉर्म में, राइट। कहीं पर भी कुछ चेंज आ गया परसेंटेज फॉर्मूला में? नो, परसेंटेज फॉर्मूला डिड नॉट चेंज, क्योंकि रेशियो जो होता है, एक्चुअली रेशियो क्या, ये पूरा प्रोपोर्शन जो होता है, रेशियो जो होता है, प्रोपोर्शन जो होता है, फ्रैक्शन जो होता है, फाइनली एवरीथिंग इज कोरिलेटेड बिकॉज हियर वी आर कंपेयरिंग क्वांटिटीज। परसेंटेज क्या होता है, दैट इज ऑल्सो अ रेशियो, पर वहां पर मेरा डिनोमिनेटर जो है, या तो फिर जो हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट जो है, दैट हैज टू बी 100। मैं 100 से देखना चाहती हूँ एक्चुअली कितना है। जब हम रेशियो निकालते हैं तो कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी 2:3, पर मतलब कॉन्सिक्वेंट कुछ भी हो सकता है, पर जब मैं परसेंटेज निकाल रही हूँ, मेरा कॉन्सिक्वेंट जो है फिक्स्ड है, दैट इज 100। आउट ऑफ 100 आई वांट टू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट एंटिटी। सिमिलरली फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर मेरा 100 फिक्स्ड है, इन केस ऑफ परसेंटेज उसमें से मेरा जो न्यूमरेटर है, वैल्यू ऑफ दैट एंटिटी कितना है, वो मैं जानना चाहती हूँ परसेंटेज में। Percentage is also comparing quantities, ratio is also comparing quantities, fraction is also comparing quantities। डिफरेंस इतना है, परसेंटेज में मैं अपना कॉन्सिक्वेंट मतलब ये जो सेकेंड टर्म आता है रेशियो में, कॉन्सिक्वेंट को 100 रख रही हूँ, या तो फिर डिनोमिनेटर को मैं 100 रख रही हूँ इन केस ऑफ अ फ्रैक्शन। ऑलराइट, अभी ये तो हो गया टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन और रेशियो इनटू परसेंटेज। इसका रिवर्स भी समझ लेते हैं। अब समझ लेते हैं हाउ टू कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू अ फ्रैक्शन। ये काफी सिंपल चीज है। यहां पर लिखा गया है 6 1/4%, तो इसका मतलब क्या है, मैं 1/4 को 0.25 भी लिख सकती हूँ, राइट। अच्छा, या तो 0.25 लिख सकती हूँ, अच्छा ऐसे नहीं लिखती हूँ क्योंकि फ्रैक्शन की बात पड़ रही है तो डेसिमल नहीं लाती हूँ। आई एम चेंजिंग दिस इनटू फर्स्ट ऑफ ऑल अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, सो इट विल बी 25/4%। तो परसेंट, ये अगर मुझे सिंबल हटाना हो तो मैं क्या करूंगी, एक्चुअली 25/4 आउट ऑफ 100, दैट मीन्स, तो मेरा डिनोमिनेटर में क्या है, मेरा डिनोमिनेटर में 100 है, लाइक 25/4 डिवाइडेड बाई 100, लाइक दिस 25/4 डिवाइडेड बाई 100, विच मीन्स अगर मैं रेसिप्रोकल निकालूंगी 25/4 इंटू 1/100 करूंगी, then I'll cancel out 25 ones are 25, 25 fours are 100। this much we have to be very clear। हम ग्रेड 7 में आ चुके हैं। सो न्यूमरेटर में क्या बच गया, 1, और नीचे डिनोमिनेटर में 4 into 4 16। सो दिस इज एक्चुअली 1/16। ओके, 1/16 को जब मैं परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करती हूँ तो हो जाता है वो 61/4%। और परसेंटेज का फॉर्मूला हमने पहले इससे पहले जस्ट सीखा था, वो याद रखना है, और उल्टा भी याद रखना है। उल्टा कुछ नहीं करना। दिस इज 22, जैसे यहाँ पर 22.75%। परसेंट मतलब मेरा जो डिनोमिनेटर है दैट इज एक्चुअली डिवाइडेड बाय 100। मेरा डिनोमिनेटर 100 है, इसीलिए मैंने परसेंट लिखा है, राइट। जो कुछ भी वैल्यू होता है, जैसे यहाँ पर 22.75 है, दैट इज एक्चुअली ये फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे ये क्लियरली निकल के भी आ रहा है कि जो वैल्यू है 22.75, दैट इज एक्चुअली न्यूमरेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 100। हो गया ये। अब ये डेसिमल पॉइंट इस तरफ जाएगा, टू साइड्स टूवर्ड्स लेफ्ट, तो ये हो जाएगा 0.2275। ऑलराइट,
तो ये हो गया मेरा वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डेसिमल। पर अगर मैं इसको अगर कन्वर्ट करूंगी इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन तो क्या होगा? फ्रैक्शन में अगर मैं इसको लिखूंगी तो इट विल बी 2275 डिवाइड बाय 1 फॉलोड बाय 4 जीरोस। अब इसको मैं जो फॉर्म ये है 5 है कॉमन, दैट आई विल रिमूव, राइट? 5 4s are 20, then 5 5s are 25, then again 5 5s are 25। यहाँ पर वैसे ही 5 2s are 10 followed by 000। यहाँ पर 5 9s are 45, 5 1s are 5। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 4s are 20 followed by 20, so it is 91 by 400। तो ये हो गया इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। और डेसिमल के फॉर्म में लिखना हो तो दिस इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर परसेंटेज। नाउ टू कन्वर्ट अ परसेंट इनटू रेशियो, तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें भी मेरा जो कॉन्सिक्वेंट है, मैंने पहले भी बहुत बार बोल दिया है, दैट इज एक्चुअली 100। और ये जो वैल्यू है ये एंटीसीडेंट है, राइट? जैसे न्यूमरेटर ये 22.75 या तो फिर ये 2561/4 ये न्यूमरेटर था परसेंटेज का, और जिसका डिनोमिनेटर 100 है। सिमिलरली यहाँ पर ये जो 43 है दैट इज द एंटीसीडेंट। तो ये 43:100, 43 प्राइम नंबर है, 100 के साथ डिविजिबल नहीं है, तो मैं ये रेशियो एज इट इज छोड़ दूंगी। वैसे ही कन्वर्ट करते हैं 7.5%। तो 7.5% मतलब कैसे लिखेंगे हम लोग इसको? इसका जो कॉन्सिक्वेंट है वो हो जाएगा 100 और एंटीसीडेंट हो जाएगा 7.5:100। तो यहाँ पर दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देती हूँ 10, सो दैट ये डेसिमल जो है दैट गेट्स रिमूव। तो 75:1000 हो जाएगा, राइट? अब हम रिमूव कर देते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है? 25 है बोथ साइड्स में, क्लियरली विजिबल। सो 25 3s are 75 एंड देन 25 40s are 1000। तो बच गया क्या? 3:40। ओके, तो इस तरह से हम परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड, उसी तरह से वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ टू कन्वर्ट अ गिवन डेसिमल इन परसेंटेज फॉर्म। तो कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल a decimal is given to us, we have to multiply that given decimal by 100 and then put the percentage sign, तब वो percentage में convert हो जाएगा। Let's do that। यहाँ पर we will multiply like we have discussed 100। okay, तो क्या हो जाएगा? The decimal point from here will move 2 places towards right, so ये हो जाएगा 0.5 and then we'll put the percentage sign। Similarly यहाँ पर 0.42 multiplied by 100, so it will become 42%। Alright, similarly to convert a given percentage in decimal form, अब एक percentage दिया गया है, हमें उसे decimal form में convert करना है। So first convert the given percentage into a fraction, बहुत important है, and then put the fraction into decimal form। Alright, तो ये है 127%। मतलब हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब इसके नीचे डिनोमिनेटर में 100 है, right? If I remove this percent sign, I have to put this 100 in the denominator। Now decimal point will move to 2 places towards the left, so it will become 1.27। ये questions काफी simple है। Similarly 0.23% दिया गया है, so I have to put a divide by 100 over here। यहाँ पर मुझे डेसिमल फॉर्म में ही इसको एक्सप्रेस करना है, सो ओके शायद ये ना दिखे, मैं अगेन इसको इस साइड लिखती हूँ बिकॉज ऑफ द डिस्प्ले। अगर ना दिखे तो इसके लिए मैं यहाँ लिखती हूँ 0.23 डिवाइडेड बाई 100 होगा, उसका मतलब it is actually decimal point will go 2 places towards the left, so it will be 0.0023। all right, this will be the answer to convert a percentage in decimal form। ये याद रखना है, if we are going to convert a percentage in decimal form, first let's write it in the form of fraction with denominator 100, clearly denominator 100, और उसके बाद हम decimal point उसको हम adjust कर सकते हैं, okay, according to the number that's given to us। तो उसके बाद हमें हमारा desired decimal मिल जाएगा। और जब हम convert करते हैं given decimal to percentage form, we just simply multiply 100 and then adjust the
decimal point accordingly and put the percentage sign, क्योंकि percentage form में convert कर रहे हैं तो percent sign is very important to be written. All right.